Okay, so let's start. Make a worksheet. Column A, column B, make it till F, make columns till F. Make the columns till F, बच्चे. Serial number 1 to 8. Serial number 1 to 8. Then write down the names here. कोई भी 8 names के entries डाल लो. Any 8 names. Then marks in different subjects. In column E, calculate the total in the column E, and in column F, calculate percentage. In column F, calculate percentage. बच्चे entries 6 तक कर लो. In the rows 7 and 8, write down. हाँ, A2 से. The names will be starting from A2. ये column header लगा हुआ है. Clear? In A1 there is a column header, that is name. Clear है बच्चे? Next is maximum marks, and in the 8th row, number of students. Number of students. Then fill the marks here. कोई भी marks fill कर लो out of 100. Done. हो गया यहाँ तक सबका? Next is first question. Write down the first question. To calculate total marks for each student. To calculate total marks for each student and display in the column E. To calculate total marks for each student and display the marks in column E. So tell me what will be the formula here? क्या formula लगाओगे in order to calculate the total? What will be the formula here? Yes, anyone? So there are two basically methods for calculating the total. The first method is either you can use the formula. The second method you can use a function. So you have to use only one. अगर आप function लगा रहे हैं तो फिर उसके अंदर plus का symbol नहीं आएगा. अगर आप formula लगा रहे हो तो plus लगाओगे लेकिन function का name नहीं लगाओगे. ठीक है? दोनों में से एक ही चीज करनी है, दोनों इकट्ठे नहीं करने हैं. This is wrong. अगर आप sum कर रहे हो और अंदर आप plus भी कर रहे हो like this. So this is wrong. Clear? So what you have to do is, चाहे आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो, चाहे आप डायरेक्टली फंक्शन लगा लो. अगर आप फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, so total will be of maths, physics and computer. So what will be the cell address of maths now? The cell address of maths here is B2 plus physics का क्या है?
C2 and then computer का D2. So this will be the formula. Clear? ये हो गया आपका फॉर्मूला से. अगर आपने इसी चीज को फंक्शन से करना है, लिखना एक ही है, कोई भी एक मेथड से कर लो. ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड्स बता रही हूँ. इक्वल टू सम B2 colon D2. The first answer is clear. Equal to sum B2 colon D2. ये चीज बिल्कुल नहीं करोगे कि आप बीच में सम लिख रहे हो और इधर लिख रहे हो B2 plus C2 plus D2. This is wrong. Right? Is it clear? Any doubt to anyone? Clear है बच्चे यहाँ पे सबको? Next is, write down the next question now. To calculate the percentage of each student, calculate percentage of each student and display in the column E and display in column E. Sorry, in column F. So you have to calculate the percentage now. So what will be the formula of percentage? Percentage का formula क्या होता है? Marks obtained divided by total marks into 100. So according to this formula, marks obtained are in column total. Marks obtained कहाँ पे पड़े हैं? Total वाले column में. That means E2 से लेके till E6. Clear? और total marks, how many subjects are there? 3 subjects are there. That means 300, right? So equal to total आपके पड़े हैं E2 में. That means marks obtained divided by 300 into 100. Clear? Alternatively आप इसकी बजाय क्या लिख सकते हो? Directly E2 divided by 3. दोनों करेक्ट हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो. इसमें सिंपली मैंने इसको आगे फर्दर कैंसिल किया. क्लियर? सो E2 डिवाइडेड बाय 3 एंड रेस्ट ऑफ द जितने भी हैं आपके पास. जोथ्रुप नीड नॉट टू कैलकुलेट B2 plus C2 plus D2. ऑलरेडी आप यहाँ पे निकाल चुके हुए हो. जो आपका टोटल है दैट विल बी इन दी E2 सेल. तो आप डायरेक्टली E2 की वैल्यू यहाँ पे पिक करोगे. E2 में पहले सम ही परफॉर्म हो रहा है. नो, यू नीड नॉट टू शो एनी कैलकुलेशन. आपने सिर्फ फंक्शंस और फॉर्मूलाज ही लगाने हैं. मैथमेटिकली आपके सिलेबस में सॉल्व करने वाला नहीं है. वो एक्सप्रेशंस अलग से हैं जो हमने येस्टरडे करे थे. राइट? सो जब भी आपको कोई वर्कशीट आएगी, वर्कशीट में आपने सिंपली फॉर्मूलाज या फंक्शंस बताने हैं. या फिर एक आपको याद होगा, मैंने आपको एक प्रैक्टिस वर्कशीट में करवाया था. आई हैव गिवन यू वर्कशीट वेयर यू नीड टू टेल द आंसर्स. जहां पे फंक्शंस मैं दूंगी, आप आंसर्स कैलकुलेट करके बताओगे. अगर वैल्यूज मैं दे रही हूं तो फिर आप फंक्शंस बताओगे. दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन. क्लियर? सो दिस इज क्लियर हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज टू एवरीवन. क्लियर है सबको? चले. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन. टू फाइंड आउट द मैक्सिमम परसेंटेज, फाइंड आउट द मैक्सिमम परसेंटेज display in the cell F7. ये वाले सेल में F7. calculate the maximum percentage and display in the cell F7. क्या आएगा F7 में? F7 is equal to, जल्दी नहीं आ गए आप बहुत. So equal to F7 में क्या लगाओगे फंक्शन? In order to find the maximum. किसका मैक्सिमम निकालना है? जितनी भी आपने यहाँ पे परसेंटेज को कैलकुलेट किया होगा. राइट? फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम द फंक्शन नेम इज, क्या फंक्शन यूज होता है मैक्सिमम के लिए? मैक्स. दैट इज इक्वल टू मैक्स. और कॉलम की क्या रेंज बनेगी? F2 से लेके F6.
इक्वल टू मैक्स F2 कॉलम F6, F2 कॉलन F6। क्लियर है बच्चे? First three questions are clear to everyone? In this question हमने टोटल भी निकालना था यहाँ पे। We are supposed to calculate the total, that's why ये टोटल का फॉर्मूला लगाया हुआ है यहाँ पे। Clear? भूमिका, which second question to calculate the percentage? बच्चे परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है सॉल्व करने के लिए? जितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। अब टोटल मार्क्स आप कहाँ पे निकाल रहे हो? जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो कहाँ पे निकाल ले आपने? E2 में निकाल ले। आप ऑटो फिल करके सारे कॉलम्स का निकाल लोगे फॉर ईच स्टूडेंट। जब आप इसको निकाल रहे हो तो आपके पास टोटल आ रहा है ना E2 वाले सेल में, राइट? तो जब आप परसेंटेज निकाल रहे हो इक्वल टू E2, टोटल मार्क्स कितने हैं? 3 सब्जेक्ट्स आर देयर, 100 अगर एक सब्जेक्ट के तो 3, राइट? सो देयर विल बी 300। यही फॉर्मूला होता है परसेंटेज कैलकुलेट करने का। अगर आपने इसको और सिंप्लीफाई करना है तो यू कैन राइट इट एज E2 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, to find out the total number of students, find out total number of students and display in the cell F8, display in the cell F8। total number of students निकालने हैं हमने F8 सेल में। so what will be the formula for that? What will be the formula for calculating the total number of students? अब यहाँ से आपने ये नहीं जज कर लेना कि 6 students are there, 5 students are there तो मैं directly 5 लिख दूँ। No, we need to formulate a function। हमने खुद ने एक फंक्शन क्रिएट करना है। वो फंक्शन कैसे बनेगा? काउंट कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ विच फंक्शन यू आर एबल टू काउंट? यस, द फंक्शन नेम इज काउंट। तो क्या लगाओगे? इक्वल टू count। now you can tell me the difference between count and count A। हमने दो that will depend कि आप रेंज कौन सी पिक कर रहे हो। क्लियर? अगर तो आप न्यूमेरिक रेंज पिक कर रहे हो यहाँ से, या फिर अगर आप सीरियल नंबर उठा लो, बी कॉलम उठा लो, सी उठा लो, राइट? तो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ से अगर आप पिक कर रहे हैं तो यू कैन इम्प्लीमेंट द काउंट फंक्शन। बट अगर आप नेम के ऊपर काउंटिंग लगा रहे हो, सो दिस इज द टेक्सचुअल वैल्यू, एंड फॉर टेक्सचुअल वैल्यू वी हैव द फंक्शन काउंट ए। सो यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू काउंट लगा रही हूँ B2 कॉलन B6, अगर आपने नेम वाले कॉलम से काउंटिंग करनी है देन द फंक्शन नेम विल बी काउंट ए। फिर यहाँ पे आएगा A2 कॉलन A6। सी कैसे आ जाएगा? आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने हैं तो स्टूडेंट्स तो इस वे में ही हैं, उनके तब भी मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं, राइट? सो अगर आप न्यूमेरिक कॉलम उठाएंगे तो आप कोई भी बी, सी या डी में से पिक कर सकते हैं, तो इट विल गिव यू 5 जो आपका प्रैक्टिकल में आएगा। लेकिन थ्योरेटिकली हमने सिर्फ इतना ही फंक्शन लिखना है। क्लियर? Same way, if you are implementing the count function on the textual values on the A column, so for that we need to use the function count A। कुछ समझ आ रहा है? So equal to count A, A2 colon A6। The difference is clear between count and count A, right? Okay, write down the next question now. Teacher wants to check how many students got A grade। Teacher wants to check how many students got A grade। अब कितने बच्चे हैं जिनका A ग्रेड है, बट यहाँ पे तो कोई भी ग्रेड वाला कॉलम ही नहीं है,
राइट कोई ग्रेड का कॉलम नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कितने बच्चे हैं जिनका ग्रेड ए है. सो वी नीड टू फाइंड आउट द ग्रेड ए फर्स्ट, राइट. फॉर दैट दे हैव गिवन द क्राइटेरिया whose percentage is greater than 85%. जिनकी परसेंटेज ग्रेटर देन 85 है उनका ग्रेड क्या है? A. So now we need to find out the total number of students those who are having grade A. तो क्या लगेगा? Which function will be used here? Condition है. कंडीशन क्या लग रही है कि परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन 85. सिर्फ वो बच्चों को आपने काउंट करने हैं जिनकी परसेंटेज 85 से ज्यादा है. तो कंडीशन इज देयर एंड वी नो दैट फॉर अप्लाइंग एनी कंडीशन वी हैव टू यूज इफ फंक्शन. तो क्या लगेगा? अभी देखो इसमें दो चीजें हैं. एक तो आपने काउंट करने हैं कि टोटल नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स हैं दोज हु आर गेटिंग अबव 85%. तो पहली चीज क्या हो गई कि यू नीड टू कैलकुलेट द काउंट. सेकेंडली कंडीशन भी है काउंट के साथ कि उसकी परसेंटेज 85 से ज्यादा होनी चाहिए. सो टू फंक्शंस आर देयर. काउंट भी लग रहा है, इफ भी लग रहा है. सो वी हैव अ फंक्शन दैट इज काउंट इफ. जब आपने काउंट भी करना है लेकिन विद कंडीशन काउंट करना है देन द फंक्शन इज काउंट इफ. क्लियर है बच्चे? नो भावना, काउंट ए नहीं चलेगा यहाँ पे बच्चे. ओके, सो फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलोंग विद द इफ कंडीशन, सो वी विल बी कैलकुलेटिंग. अब क्या लगाओगे? किन बच्चों को आप चेक कर रहे हो? द रेंज विल बी, क्या रेंज आएगी? यस, वी नीड टू कैलकुलेट दी. हमने क्या चेक करना है? परसेंटेज चेक करना है. परसेंटेज का एड्रेस क्या आ रहा है? F2. F2 कॉलन F6. ये कंडीशन की रेंज बन गई. What we have to check? It should be greater than 85%. So this will be the function. Count if, काउंट करो. इफ यहाँ पे क्या हो रहा है? जिनकी परसेंटेज 85 से ज्यादा है और रेंज क्या उठाएगा? वो परसेंटेज वाली, दैट इज F2 कॉलन F6. क्लियर? सो यू कैन सी एट द आंसर नाउ. विजिबल है? मेरे इस करके क्या चीज? वेट, परसेंटेज हमारी F2 कॉलन F6 में पड़ी है एंड वी नीड टू अप्लाई द कंडीशन इट शुड बी ग्रेटर देन 85. क्लियर? अब बताओ क्या कह रहे हो? ए आर है? आई एम नॉट गेटिंग यू. व्हाट यू आर ट्राइंग टू से बताओ. बट इसमें हमने क्या करना है? हमने काउंट भी करना है. तो काउंट जब हमने पहले भी लगाया था, जब नेम्स आपने काउंट करने थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने थे, हम रेंज भी बताते हैं ना फॉर टेलिंग दी काउंट. काउंट कैसे होगा? रेंज बताओगे तभी काउंट करेगा वो. इसीलिए यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई करनी पड़ रही है क्योंकि हमने काउंट भी करना है बट विद कंडीशन. इफ से मैंने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई किया है. ये रेंज जो मैंने दी है दिस इज फॉर द काउंटिंग कि इन रेंज में से, इस पूरे टोटल इतने कॉलम में से फाइंड आउट द स्टूडेंट्स दोज हु आर गेटिंग ग्रेटर देन 85. क्लियर बच्चे? सो काउंट इफ का सिंटेक्स यू कैन बेसिकली टेक इट एज काउंट इफ, रेंज, फिर उसके बाद उसकी कंडीशन. क्लियर? क्योंकि इफ विल चेक फॉर द कंडीशन एंड काउंट विल गो फॉर द रेंज. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं, यहीं पे लगाओगे. नेक्स्ट इज add one more column with the name
रोल नंबर। अब आप एक और आपने कॉलम इंसर्ट करना है और उस कॉलम का नेम क्या होगा, रोल नंबर। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम, राइट। सेकंड थिंग, एंड राइट द नेम ऑफ द फीचर टू पॉपुलेट इट। वो कह रहे हैं कि आपको एक न्यू कॉलम इंसर्ट करना है जिसका कॉलम का नेम होगा रोल नंबर। और कौन सा आप ऐसा फीचर लगाओगे जिसमें इसकी वैल्यूज अपने आप पॉपुलेट हो जाएंगी। पॉपुलेट मींस अपने आप फिल हो जाएंगी। विच फीचर यू विल यूज विद द हेल्प ऑफ विच द रोल नंबर कॉलम विल गेट फिल्ड, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वैल्यूज कैसे फिल होती हैं, ऑटो फिल फीचर। क्लियर? So you will use autofill feature in order to populate the values of the roll number column automatically. अब इसमें दो चीजें यूज हो रही हैं। Firstly, you need to insert a column. Column insert कैसे होता है कैल्सी में? What are the procedures? हमने इंसर्ट सेल डायलॉग बॉक्स की ऑप्शंस करी थी, उसके अंदर एक ऑप्शन होती है एंटायर कॉलम। So firstly, use entire column option in the insert cells dialog box, and then with the help of the autofill feature, you will generate the values of the column automatically. इसमें दोनों आंसर्स बताएंगे। Clear? The first thing you will tell, insert a new column from the insert cell dialog box. The option is entire column. After inserting a column, name it, give a name, roll number, and then with the help of the autofill feature, populate the values of the column automatically. Clear? The answer is clear to everyone? Answer is clear, बच्चे? Next is, write down the name of the chart. Write down the name of the chart which is most suitable to represent, student performance. कौन सा चार्ट ऐसा है जो सबसे ज्यादा सुटेबल है फॉर रिप्रेजेंटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। हम कंपैरिजंस करेंगे। वी नीड टू कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट। आप हर स्टूडेंट की परसेंटेज को कंपेयर करेंगे, एंड फॉर कंपैरिजंस वी डिस्कस्ड टू चार्ट्स, रिमेंबर, जो बेस्ट कंपैरिजंस के लिए देते हैं। पाई चार्ट तो सिंगल डेटा सीरीज के लिए होते हैं, आप इतने सारे डेटा को कैसे कंपेयर करोगे। यस प्रभुगुण, ये आंसर इज राइट। एनीवन एल्स? कॉलम चार्ट और बार चार्ट, ये दो चार्ट्स ही ऐसे हैं जिनको हम बेस्ट सूटेबल मानते हैं फॉर द कंपैरिजन। जब भी आपको कंपैरिजंस के लिए पूछा जाए, ऑलवेज द आंसर इज कॉलम चार्ट और बार चार्ट। लिखना एक ही है, यू कैन राइट एनीवन, कॉलम चार्ट और बार चार्ट। Clear? And after the class, I will share this worksheet also in the group, so you can download it and give a practice at home also. एक बार खुद बिना देखे फॉर्मूला सारे खुद लगाओगे। Clear? Next is, move the original data. Write down the next question. Move the original data range. Move the original data range to a new location. Will the cell references change? अगर आप डेटा को मूव करके एक न्यू लोकेशन पे लेके जा रहे हो तो जो सेल एड्रेसेस हैं वो चेंज होंगे, yes or no? First question is, you have to move the data from one place to the another. ओरिजिनल लोकेशन से आपने न्यू लोकेशन पे डेटा को मूव करना है, तो मूव करने के लिए क्या ऑपरेशन यूज होगा? Which operation we will use in order to move it? मैंने आपको दो चीजें बताई थी, कॉपिंग एंड मूविंग। कॉपिंग और मूविंग में क्या डिफरेंस होता है? जो कॉपिंग है उसमें आप दो ऑपरेशंस यूज करते हो, कॉपी एंड पेस्ट। मींस आप डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर रहे हो ओरिजिनल शीट की। ये शीट भी रहेगी बट इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। सो दैट मींस कॉपी ऑपरेशन एंड पेस्ट ऑपरेशन। मूविंग में होता है कि आप ओरिजिनल डेटा को ही मूव करके न्यू लोकेशन पे लेके जा रहे हो, सो इट विल जस्ट हैविंग अ वन, एक ही बार उसका इंस्टांस आ रहा है, उसकी मल्टीपल कॉपीज नहीं क्रिएट कर रहे आप, डुप्लीकेसी इज नॉट देयर।
सो दैट मीन्स कट एंड पेस्ट। कॉपी में दो ऑपरेशंस कौन से हैं? कॉपी पेस्ट। मूविंग में कट पेस्ट। तो अभी हमने मूव करने हैं, सो द ऑपरेशन विल बी cut and paste. So in order to move the data from one location to the another, cut and paste operation will be used. आप उसके steps बताएंगे. Select the data. After selecting the data, with the help of the cut from the edit menu, cut on the standard toolbar or Control plus X. Then select the location where you want to move the data. So paste it. For pasting also 3 methods we discussed. पेस्टिंग के 3 मेथड्स कौन से हैं? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार और एडिट मेन्यू के अंदर पेस्ट ऑप्शन। क्लियर? ये तो हो गया पहला स्टेप कि आप मूव कर रहे हैं, आप ओरिजिनल लोकेशन से उसको लेके कोई न्यू लोकेशन पे लेके जा रहे हैं बाय कट एंड पेस्ट। सेकंड थिंग, जब आपने उसको मूव ही कर दिया ओरिजिनल लोकेशन से, यहाँ पे जैसे मेरे पास एड्रेसेस पड़े हैं A2 A3, B2 B3, C2 C3, आई एम मूविंग दिस डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैं एक न्यू लोकेशन पे इसको ले गई हूँ, तो वहां पे क्या मेरे जो सेल एड्रेसेस चेंज हो जाएंगे? सेल रेफरेंसेस विल गेट चेंज, यस और नो? इतना क्या सोच रहे हो इसमें? मैंने A2 से इसको चेंज करके अब मेरे पास F2 तक सारा फील्ड है, मैंने इसको H2 I2 J2 कहीं पे जाके पेस्ट कर दिया, तो वहां पे एड्रेस न्यू नहीं आ जाएगा? फिर अगर मैं इसको A2 से यहाँ से पिक करके H2 पे लेके जा रही हूँ, तो दैट मीन्स A2 जहाँ पे सुहेल पड़ा है वो H2 में सुहेल चला गया, तो A2 की बजाय वहां पे सेल एड्रेस क्या बन गया? H2। सो डेफिनेटली द सेल एड्रेसेस विल गेट चेंज्ड। सेल एड्रेसेस क्या हो जाएंगे? चेंज होंगे। क्लियर? Any doubt in the complete worksheet? Any question?